خواتین حضرات السلام علیکم. آپ کا شو جگہ خالی ہے اور آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ. آج جو میں اپنے پروگرام کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں وہ تھوڑی سی بالکل مختلف ہے. جو باقی پروگراموں میں جس طرح میں تمہید باندھا کرتا تھا، آج کچھ بات ایسی نہیں ہے. کچھ اور طرح سے میں بات کرتا ہوں کہ اقبال دیر سے آتا ہے، مگر آج میری شو جگہ خالی ہے پر کرنے کے لیے اقبال بالکل وقت پر آ گیا ہے. جبھی تو ہم انہیں بلند اقبال کہتے ہیں. جی ہاں، آپ سب کے جانے مانے بلند اقبال آج لائٹ موڈ میں موجود ہیں. آئیے پتہ کرتے ہیں کہ ان کی یہ لائٹ موڈ کی جو وہ ہے لائٹ جو ہے وہ کتنی دیر تک آج پروگرام میں آن رہتی ہے. آداب جناب. جناب بہت شکریہ آپ کا. تو کچھ لائٹ موڈ کے سوالات ہیں بالکل جس کا آپ ہیوی ویٹ جواب دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ سوال پوچھنا ہے آپ سے، اسٹارٹ یوں کرتے ہیں کہ آپ ایک مفکر ہیں، آپ ایک ادیب ہیں، آپ میڈیا جرنلسٹ ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹر بننے کے لیے تو ابتدائے وقت سے ہی جو ہے اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے. مگر مفکر، ادیب اور میڈیا جرنلسٹ بننے کے لیے آپ نے کب سے محنت شروع کی اور کیسے یہ سب کچھ بننے کا خیال آیا؟ میرا خیال ہے یاسین کہ سفر یہ بس یوں اچانک آ گیا میری زندگی میں. یہ کچھ معاملات اتفاقاً تھے. یہ تھوڑی سی بات دوسری انداز کی ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ ڈیڈی کی جین تھی مجھ میں، تو اس نے کچھ نہ کچھ اپنے فیکٹس دکھائے اور ایکسپوز ہو گئی. کچھ مسائل آئے زندگی میں ایسے جس کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی اور میں کچھ ادب کی طرف اور فلسفے کی طرف اور ان تمام چیزوں میں شامل ہوتا چلا گیا. جی ہاں. تو جی لیکن یہ سارا کچھ کینیڈا آنے کے بعد ہی ہوا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں کینیڈا سے پہلے، لیکن تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تھا تھوڑا بہت. اچھا عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بننے کا خیال بیٹے سے زیادہ باپ یا ماں کی آرزو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو تھوپ دی جاتی ہے. کیا آپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی رہا ہے؟ ٹو بی آنسٹ یہ تو مجھے لگا جیسے کہ بعد میں کہ واقعی یہ میرا لو آف فرسٹ سائٹ نہیں تھا. لو آف فرسٹ سائٹ میرا جو تھا وہ اصل میں میڈیا اور ادب اور لٹریچر اور فلسفی تھی. جس طرح سے میں اس میں پینیٹریٹ ہوتا چلا گیا، لیکن امی کی خواہشیں تھی. امی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش سر. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ابھی یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ آرزو مند ہیں کہ آپ کے چاروں بچے ڈاکٹر بنیں یا ایک یا دو ضرور؟ ہرگز نہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی خود بنائے، اپنے شوق سے چلیں، اور ایسا کچھ میرا خیال نہیں کہ ان میں سے ایک ضرور ڈاکٹر بنے. جو وہ دل چاہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اپنی، کیونکہ ہر شعبہ اپنی جگہ بہت ریپوٹیبل، بہت ریسپیکٹیبل ہے اور ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اچھا، تو ابھی سب سے بڑا بیٹا ہے شاید آپ کا؟ سب سے بڑا. اس کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال. 17 سال ہے. تو کچھ جراثیم نظر آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گا؟ انتہا فرمانبردار بیٹے ہیں. میں نے ان سے ایک بار مذاق میں کہا کہ بیٹے آپ ڈاکٹر بنیں گے؟ کہیں گے جی ڈیڈی آپ جو کہیں گے میں بنوں گا. میں نے کہا بیٹا آپ جو چاہیں وہ بنیں گے، تو انسان بن جائے. پہلے مگر انسان بن جائے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی بات. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو کیا اسی لیے آپ نے ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کو اپنا دوست بنایا؟ نہیں، میں نے مرزا یاسین بیگ کو اپنا دوست بنایا. میں نے ڈاکٹر خالد سہیل کو اپنا دوست بنایا. میں نے انہیں ضرور اپنے سب کانشیس کا حصہ بنایا، مگر میرا خیال ہے سب کانشیس سے بھی زیادہ اہم چیز ایک کانشیسنس ہے جس میں آپ شامل ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے احباب شامل ہیں جن سے میں دن رات سیکھتا رہتا ہوں. میں یوں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ناظرین سے بھی سیکھتا ہوں، اپنی فیملی سے بھی سیکھتا ہوں. اچھا، تو ان کو دوست نہیں کہتے آپ؟ وہ سمجھ لیجیے اگر وہ جگر ہیں تو آپ دل ہیں، یہ والی بات. صحیح. آپ کوشش کر رہے ہیں پوری کہ میں کوئی جو ہے ہارڈ سوال نہ کروں، پہلے آپ مجھے رام کر رہے ہیں. بالکل آلٹرنیٹیو وے اختیار کرتا جا رہا ہوں، سروس روڈ لیتا جا رہا ہوں. مرد عموماً عورتوں کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، جی، مگر آپ تو صرف مردوں پر گفتگو کرتے ہیں اور مردوں سے ہی کرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ مرد سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ عورت کے بارے میں کب گفتگو کرنی ہے اور کن عورتوں سے گفتگو کرنی ہے. اچھا، گڈ. اور کیا کہوں کھل کے آپ بھی. اچھا، آپ کو قبل مسیح، بعد از مسیح، بعد از اسلام میں سے صرف قبل مسیحی کا زمانہ کیوں پسند ہے؟ کچھ ایسا نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی پرانی روح ہو قبل اس وقت کی، کوئی اس زمانے کے اینشنٹ دور کی جو اپنے طور پر وہاں سے نکل کر اس دور میں شامل ہونا چاہتی ہو. لیکن اس کا تعلق صرف اس وجہ سے ہے، ان سیریس نوٹ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کو پڑھے بغیر فیوچر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹ سے
आगे जाए और ऊपर की तरफ बकौल कैसे पाँव ज़मीन में गाड़ कर बादलों की तरफ या आसमान तो की उसके लिए ज़रूरी है कि क़ब्ल अज़ मसीह ही जाया जाए। मेरा ख्याल है कि चूंकि तारीख का सफ़र वहाँ से शुरू हो रहा है तो हमें बहरहाल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से चूंकि एक दौर शुरू हुआ है तो उससे पहले से हम ज़रूर एक नज़र मार लें। तो मैं बहुत जो है ना बचा के आपको लेके चल रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं एक नुक्ते की बात करता चलूँ कि इसको मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छा के प्रोस्पेक्ट से लेके चलते हैं। अच्छा, इंडियन फिल्मों का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये बुलंद अकबाल साहब, आप भी लोगों को तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुनाए जा रहे हैं। नहीं, जोग्राफिया भी बताता हूँ कभी कभी और कभी कभी तारीख और जोग्राफिया के डायमेंशन में जो कुछ भी हुआ उसके हवाले से बात करता हूँ। मगर तारीख का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो सनी देओल हैंडसम बहुत है और मैं जब उसको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद उसके कुछ इंप्रेशन मेरे में भी आ जाए। वाह, तो ये वजह ये भी है। अच्छा, अगर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर मुफक्किरीन, दानिश्वर और पैगंबरान के नाम लिए जाएं तो उनमें कोई उस पाए की औरत क्यों नहीं दिखाई देती, जबकि आदम का जिक्र हव्वा के बगैर मुकम्मल नहीं होता? मेरा ख्याल है कि आदम के बाद ही हवा का जिक्र आया था क्योंकि वो उनकी पसलियों से पैदा हुई थी। तो वो जब इनलाइटनमेंट और इंटरटेनमेंट के दरमियान हम डिफरेंसेस देखते हैं तो बदकिस्मती से हवा को हम समझते हैं कि आदम की इंटरटेनमेंट के लिए पैदा किया गया था। ये बड़ा मतलब मुतनाज़ा जुमला हो सकता है। नहीं कोई लेकिन, हाँ। लेकिन ये पूरा का पूरा एक सफर है, फिर वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तारीख का, जिसमें औरत और मर्द के इस पूरे सफर में औरत के पीछे रह गई है। तो वो एक बड़ा अहम मौजू है, इस पर अगर आप चाहें तो हम संजीदा गुफ्तगू करें। नहीं, आप कुछ संजीदा कर सकते हैं। लाइट का मतलब ये थोड़ी है कि आप मुसलसल जो है लाइट ही बोलते रहें, आप बोल सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि क्यों नजर नहीं आती, चाहे आप पैगंबरान की तरफ देखें और चाहे दानिश्वरों की तरफ बिल्कुल, देखें। इसलिए कि हम मजहब के हवाले से जब सोचते हैं तो हम मजहब को एक सेंट्रल आइडिया बनाकर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम मजहब को एक सब्जेक्ट ले लें और फिलॉसफी को भी और समाज के तमाम सब्जेक्ट्स को भी, तो फिर हमारी जो फिक्र है वो ज़्यादा एक मुतवाजन हो जाती है। उसमें अगर हम देखें तो हम समझ में आता है कि औरत के साथ उसकी पूरी की पूरी फिक्र जो है वो कुछ इस तरह से डेवलप हुई कि उसमें मज़ाहिब में भी जो औरतें आई या फिलॉसफी के अंदर भी, और फिलॉसफी में आई औरतें, बड़ी बड़ी औरतें आई। लेकिन देखिए, कोई बड़ा हवाला नहीं मिलता। जब भी हम बात करेंगे तो अरस्तु, बुकरात, सुकरात, हम ये बात करते हैं, कभी उस तरह का कोई औरत का नाम सामने नहीं आता। एंशिएंट दौर के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें हो सकता है कि हम वहाँ पर तारीख पर हमारी नज़र उस नज़र से हम ना सोच रहे हो, मगर बात के एतबार में तो हमें औरत नज़र आती ही है। मतलब कौन से एक दो औरतों के नाम लीजिए, आपके मुंह से अच्छा लगता है। मजहब के दौर में जाए तो राबिया बसरी के हम जिक्र कर लेते हैं, या फिर अगर हम फिलॉसफी की बातें कर रहे थे, अभी सेमेंडी की बात कर रहे थे जो सातर की महबूबा थी और उनका फिलॉसफी के अंदर सेकंड सेक्स के हवाले से बात करते हैं, जिन्होंने खुद ही इस बात को एक्सप्लोर किया कि क्यों औरत के साथ मसाइल हुए। फिर सियासत में एक से बढ़कर एक नजर आते हैं लोग। मतलब मगरिब की तारीख तो भरी हुई है, मैं कहूँगा। ठीक है, अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, या थोड़ा सा आप अच्छा ये बताइए, आप अरस्तु, अफलातून, सुकरात की इतनी पब्लिसिटी करते हैं कि ऐसा लगता है कि आपको उनसे लिफाफे मिलते हैं। मुझे अकल के लिफाफे मिलते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है जैसे कि वाकई, क्योंकि जब भी हम इस तारीख के पूरे सफर को देखते हैं और अरस्तु, सुकरात हो या प्लूटो हो, तो हमें उसके सारे डायमेंशन बाद में खुद मेडिवल दौर में मुस्लिम हिस्ट्री में भी नजर आते हैं, और फिर उसके बाद हम पूरा मगरिब का सफर भी देखते हैं, तो हमें पूरा इर्तिकाई सफर में ये रूट्स बड़ी स्ट्रांग नजर आती हैं। तो मैं ना चाहते हुए भी वहां पर रुक जाता हूँ, लेकिन पूरी हिंदी मैथोलॉजी के अंदर, हिंदू फलसफे के अंदर हमको बड़े बड़े नाम मिल सकते हैं जिनको हम उनके पैरल रख सकते हैं, मगर हम फॉर द सेम रीजन वी जस्ट गो इनटू दैट डायरेक्शन जहां से हमें ज्यादा इल्म इत्तेफाक से नसीब हो गया ऑन प्रैक्टिकल पर्पसेस। चले, लेकिन आपको पता है लोग तो शक करते हैं ना। लोगों का तो काम है सर, काम है ना। और लिफाफे इतने मशहूर हो गए आजकल, तो दौर ही मीडिया का ऐसा है कि जिसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है तो लोग समझते हैं यार वहां से कुछ मिला होगा। आई विश कि मुझे लिफाफे मिले। चले, आपकी ये विश, हाँ, आपकी इसी विश पर हम कुछ देर बाद दोबारा बात करेंगे। अभी वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, तो नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं और देखिए कितनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और आगे भी बड़े मजे के सवालात हैं बुलंद अकबाल से। तो इंशाल्लाह हम वापस आते हैं, थोड़ी देर के लिए इश्तिहारात देख लीजिए।
Amazing opportunity to buy detached house from high $600,000. Just 8 minutes from Wasaga Beach, 30 minutes from Barrie, 1 hour and 15 minutes from Brampton, and just 1.5 hours from Toronto. Easy deposit structure with 2,000 per month plan. Levies are capped and assignment is available. Don't miss the opportunity. Call now. Wajid Malik at 416-827-3333. This past year, we've learned what really matters in our lives. And what government does, or doesn't do, also matters. We've seen bad choices with devastating consequences. Imagine instead a premier that chooses you, who protects workers, who stands up for local businesses, not big box stores, who instead of cutting, invests in healthcare and our kids. That's what matters to me. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मियां अबू बकर और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि आप हमारे साथ मिलके सैटरडे 14 अगस्त को शाम 4 बजे मिल्टन मॉल के अंदर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। Let's make the largest Pakistani flag waving event outside Pakistan. आए हम सब मिलकर पाकिस्तान का परचम लहराएं और पाकिस्तान और कनाडा का कौमी तराना मिलकर गाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने साथ पाकिस्तान का फ्लैग लेके आएं, लेकिन अगर आपके पास परचम नहीं है, we will give you a free flag and there are also goodies for the kids. आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive?
For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ख़वातीन और हज़रात, हम वापस आ चुके हैं। जगह खाली है प्रोग्राम का नाम है, और आज के मेहमान हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। उनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। आपने उनको हमेशा बहुत संजीदा लहजे में बड़ी संजीदा और मुदब्बराना बातें करते देखा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज इनके अंदर की जो हिस्से मिज़ाह है उसको मैं ज़रा सामने लाऊं और देखूं कि ये लाइट मूड में कितनी देर बातें करते हैं और किस तरह करते हैं। तो जनाब, अगला सवाल आपके लिए कि अगर आपको उन्हीं पुराने फिलोसफर्स से दोस्ती करनी होती जिनका जिक्र अभी चल रहा था, तो कौन एक उसमें से आपका महबूब दोस्त होता? मेरा ख्याल है मैं सुकरात से ही दोस्ती करता। अच्छा। क्योंकि वो ही असल में है मंबा जो रोशनी का। और फिर जाहिर बात है सफ़र आगे बढ़ता चला जाता, तो मैं फिर अरस्तु को शायद प्लूटो के ऊपर ज़्यादा क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो ज़मीन के करीब है, प्लूटो ज़रा आसमान के करीब, और मैं आसमान पर उड़ने वाला परिंदा नहीं हूँ, मैं ज़मीन पे चलने वाला इंसान हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी फ़िलॉसफी के ज़्यादा करीब हूँ। तो फिर ये सफ़र इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता। तो आपका क्या ख्याल है, वो लोग भी आपसे दोस्ती कर लेते? वो थे इस तरह के लोग या वो सिर्फ किताबों में खो जाने वाले लोग थे? ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि वो मुझे इस लायक समझते नहीं, लायक के हवाले से नहीं कहा। लायक तो मैं बहुत लायक में बहुत, वो तो बहुत खुश होते हैं ना जब आप उनके लिए इतने सारे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। वो तो बाद में पूछेंगे जब उनसे मुलाकात होगी कि मैंने उनके साथ क्या किया। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों में हिस्से मिजाती या सिर्फ वो दानिश्वरी थे? मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप इनलाइटनमेंट के आदमी हैं तो आपके पास इस हिस्से मिजा ना हो। अच्छा, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन मेरे तजुर्बात में आज के बहुत सारे लोग ऐसे आए कि वो अगर थोड़े से भी दानिश्वर बन गए, थोड़े से भी रहा, तो वो बिल्कुल हंसते ही नहीं है। और हंसने को वो समझते हैं कि शायद जो है कोई चीज जो है उनके अंदर की छिन जाएगी। हाँ, छिन जाएगी। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप मज़ाहिब से दूर रहते हैं, तो अभी सिर्फ एक तलाक हुई या 3 तलाक़ें दे चुके हैं? रुजू का कोई चांस है या नहीं है? मजहब एक इल्म है और इल्म से आप नफरत नहीं कर सकते। मजहब इल्म है। इल्म है। अच्छा। बिल्कुल, डेफिनेटली इल्म है। इल्म के बिना तो कोई भी मौजू, कोई भी फलसफा अपनी जगह बना ही नहीं सकता। और मजहब तो सदियों से दुनिया में है, मजहब ने तो सोसाइटी में बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, समाजी, सकाफती, फाइनेंशियल, ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों को मलूज़ रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी में आपने अब तक जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इनमें से आपके नज़दीक सबसे अहम और खूबियों से भरपूर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? अब देखिए, बायास मत समझिए, मगर देखिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा तो मैं इश्क का मेरी अपनी बीवी से मुझे मोहब्बत है। अच्छा, लोग हैरान होते हैं इस बात से भी कि बीवी से मोहब्बत, मगर मुझे वो भी अपनी बीवी से मोहब्बत। तो मुझे है इत्तेफाक से, इत्तेफाक समझ लीजिए। वो प्यार जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो है सबसे ज्यादा मेरा सीमेंटेड और सबसे ज्यादा। उसकी बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो है अपनी जगह, जो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो दोस्तों के आपस में एक मिलने का एक होता है तरीका, लेकिन वो जो मोहब्बत है बीवी की, उसके बाद फिर बच्चे और फिर वो फैमिली, वो मेरे लिए सबसे अहम है। बिल्कुल, मैं डायरेक्ट नहीं आना चाह रहा था, तो ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि जिंदगी का पार्टनर निकाह नामे के साथ लाना चाहिए या सिर्फ मोहब्बत नामे काफी होते हैं? मोहब्बत काफी है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये सबके लिए है? मैं सबका तो नहीं कहता, इसलिए कि हर इंसान अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि जब कभी भी उसमें निकाहनामा आ जाता है या जब कभी भी उसके अंदर कागजी कार्रवाइयाँ आ जाती है तो फिर चीजें वो आर्टिफिशियल हो जाती हैं। अच्छा, मोहब्बत जो है वो बिल्कुल एक प्योर एक मामला है जो बिल्कुल दिल का दिल से जुड़ने का ताल्लुक है। इसमें निकाह नामे वगैरह की गुंजाइश, चूंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बहरहाल मैं अपनी जो लड़की मुझे पसंद आई थी उसको लेके निकलता तो वो मेरे साले जो है वो मेरे पीछे भागते। समझ रहे हो? बिल्कुल, तो ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने साइन किया। यही वजह है कि जब मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा था तो मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे थे और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैली हुई थी। तस्वीरों में अभी तक वो फैली हुई और मेरी बेगम भी कहती है कि मुस्कुरा क्यों रहती है, ये पढ़ा रहा है, इसकी जरूरत है। गुंजाइश हर जगह आपने रखी हुई है। तो मतलब आप अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना, इतने ही कुशादा दिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं बिल्कुल कुशादा हूँ इस मामले में। अच्छा, मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप जो है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। वाह, चलें जी, अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं। आपने लिखने का आगाज अफसानों या कहानियों से किया, ठीक है, और पहली किताब में ही फरिश्ते के आंसू निकाल दिए।
इस पर फरिश्ते आपसे नाराज तो नहीं है? असल में तो मैं पढ़ने वाले का आंसू निकालना चाहता था लेकिन नाम तो फरिश्ते के आंसू है। लेकिन क्योंकि मेरे पढ़ने वाले फरिश्ते जैसे हैं तो उनके आंसू निकल। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बराह रास्त किसी फरिश्ते से तवक्को नहीं रखी आपने? नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली फरिश्ते जैसे मिथ के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता, मगर मैं उसको एक मैसेज जरूर समझता हूँ, एक ख्याल समझता हूँ, एक थॉट समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जब थॉट की आंखों में आंसू आ जाए तो समझ जाइए कि तख्लीक के अमल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी पूरा का पूरा एक जो फिक्र है उसके जाविये में कहीं कुछ जाविये खायमा से कुछ चीजें किसी और जाविये में निकल गई हैं। अच्छा, और दायरे से भी बाहर निकल गई? दायरे से ही बाहर निकल गई, तो इसलिए अब तख्लीककार का काम शुरू हो गया, नहीं राइटर का। चले, ये तो पहली किताब के हवाले से हुआ। अब दूसरी किताब पर आते हैं। दूसरी किताब आई मेरी 51 कहानियां। इससे पहले हमारे तहजीब में जो है वो 51 रुपए की सलामी मशहूर थी। तो क्या ये नाम उसी मशहूर जुमले से या ख्याल से अख्ज़ शुदा है? ये नाम मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने ये तजवीज़ किया था। अच्छा। तो मैंने उनकी जो एक वो मोहतरम शख्सियत थी, अल्लाह ने अभी हाल ही में, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि बुलंद इसकी मेरी 51 कहानियां नाम रख दो। मैंने कहा जैसा आप चाहें, वरना टू बी ऑनेस्ट मैं ज़रा सा आर्टिस्टिक नाम रखने का हमेशा से ख्याल रहा हूँ। ये वजह कि बाकी किताबों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव आर्टिस्टिक नाम मिलेगा। ये वाहिद किताब है जैसे मैंने, और इसके अंदर एक नुमाइशी पहलू भी था, मेरी 51 कहानियां, जैसे मैंने 51 कहानियां लिखी, इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मगर मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो दिल ना तोड़ने का एक तरीका तो ये भी होता है ना कि आप 51 रुपए की सलामी दें या 101 रुपए की सलामी दो। ऐसा जिंदगी में कितनी दफा किया? मैंने ये सिर्फ शादी में ही हुआ था मेरे साथ, मुझे सलामियां मिली 51 भी। आपने कितने दिए अब तक? जब तो 51 की देते हैं या 101 की देते हैं? 101 तो देना ही चाहिए, 51 भी दे देता हूं लेकिन ये मेन्यू देखकर। अच्छा, ये तो हो गई बात मेरी 51 कहानियों की। अब उस 51 कहानियों के बाद अब तक आप मजीद कितनी कहानियां लिख चुके हैं? अब तक मैं कोई 24-25 कहानियां उसके बाद लिख चुका हूं, लेकिन अब उन्हें पब्लिश नहीं किया मैंने अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉवेल निगारी की तरफ निकल गया। जी जी जी। तो मैंने फिर कुछ और काम शुरू कर दिया, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो वो कहानियां जो है वो हैं जरूर, मगर वो बहुत ज्यादा मैं कुछ फलसफियाना अंदाज में लिखने लगा, तो वो एक शक्ल उसकी जो है अभी तक मेरे दिल में है कि यार इसको जरा सा मैं एडिट करूंगा, जरा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करूंगा। अच्छा, फिर ये हो गई, 2 किताबें हो गई। फिर आपके मज़ामीन का मजमूआ आया, सारे मोहब्बत नामे मेरे। लेकिन जब हम वो पढ़ते हैं उसमें मोहब्बत कम नजर आती है, खुलूस ज्यादा है, मोहब्बत कम है। और उसके बाद नॉवेल टूटी हुई दीवार। तो ये दीवार अब तक जुड़ी की नहीं या सिर्फ आपने निशानदेही करके छोड़ दी है? मेरा ख्याल है कि बीइंग ए राइटर यू शुड बी सोशली और पॉलिटिकली एक एक्टिविस्ट आपका होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। यानी ये थोड़ी सी बात संजीदा हो जाएगी, नहीं करेंगे मैं इतनी संजीदा की गुंजाइश है, और खासतौर पर आपके लिए। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम राइटर हो, मैं समझता हूँ जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा, अगर मैं उसको राइटर कह लूँ, राइटिंग कह लूँ और राइटर समझ लूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो एक आपकी सोशल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस लोगों में डेवलप करें। मुझे ये बातें इतनी अच्छी नहीं लगती कि वो जो हम अपने सेटिस्फैक्शन, ये सब झूठी बातें। असल में आपका रोल क्या है, आपका एसेंस क्या है सोसाइटी के लिए, आप उनके लिए कुछ अपने, और जो कुदरत ने आपने सलाहियत आप में रखी है, उससे माशरे की आप कितनी वो कर रहे हैं? कितनी जी। तो वो टूटी हुई दीवार बदकिस्मती से टूटी हुई है, मगर मैंने अपने तौर पर उसमें ईंट लगाने की कोशिश की है। अच्छा, ईंट लगाने की कोशिश की है। मगर ये क्या पता नहीं, वो जुड़ी मतलब आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करने की कोशिश की है उसके जरिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो आपकी किताबें आई हैं, तो क्या हमारे यहाँ इतने कारी हैं और इतने समझदार हैं? अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो ख्याल है कि बहुत समझदार हैं और बहुत खारी हैं और बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो किताबें कम क्यों बिकती हैं इतनी? लोग खरीदना नहीं चाहते किताब, और लोग चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में मिल जाए तो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? मुफ्त में मिल जाए तो मेरा तो तजुर्बा मुख्तलिफ। अगर मैं मुफ्त में किसी को दे, अब मैंने इसीलिए देना छोड़ दिया मुफ्त में। मुफ्त में अगर मैं किसी को देता हूँ तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और जो लोग मुझसे खरीद रहे हैं, पार्चे के साथ मेरा जो है वो ये है कि काफ़ी मेरी वो 2 एडिशन हो गए, 1 एडिशन वहाँ से भी किया, और वो भी अभी वो लोग कह रहे थे सिर्फ मेरे ख्याल 80 या 70 किताबें रह गई। तो पता चला कि जो लोग खरीदते हैं, आप यकीन कीजिए, वो बाद में मुझसे रुजू करते हैं, बातें करते हैं उसके बारे में, और कहते हैं वो अच्छा था, वो बुरा था, ये सब चीज़। लेकिन जिनको मैं मुफ्त में देता हूं पता ही नहीं चलता किताब कहां गई। फिर मेरा ख्याल है कि एक और चीज भी डेवलप हो गई, जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब चीजें, और फिर ये कि विजुअल रिफ्लेक्स डेवलप हो गया। लोग बात किताब को पढ़ने के बजाय देखना पसंद करते हैं। जैसे मेरी आपकी गुफ्तगू एंजॉय कर रहे होंगे मुमकिन लोग, लेकिन अगर आप इसको राइटिंग के अंदाज में लेकर आए तो फिर वो एक जनरेशन है जिसको पसंद करेगी। तो फिर ये आपने जो प्रोग्राम किए, फिर उसकी किताब क्यों आ गई? इसीलिए आ गई
क्योंकि वो किताब वो बाज़ मौज़ूआत शायद ऐसे होते हैं कि वो किताब की शक्ल में, और फिर एक जनरेशन मैंने कहा ना मौजूद है जो किताब से अपना राब्ता रखना चाहती है। अच्छा। और मैं भी अभी तक कोई इतना दिल से वो ना मायूस नहीं हुआ कि साहब क्योंकि किताब के हवाले से मगरबी दुनिया में कहा जाता है कि जैसे किताब का कॉन्सेप्ट दुनिया से खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ अफवाह ज्यादा है, लेकिन मगरब में नहीं है, मगरब में किताब बहुत पढ़ी जा रही है। बिल्कुल पढ़ी जा रही है, लेकिन ये किताबें चूंकि उर्दू जबान में हैं तो इसलिए थोड़ा सा मसला है जबान के हवाले से भी। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, ये एक अहम मौजू है तो एक दो बातें जरूर कर लूँ यहाँ पर, कि इसमें कुछ राइटर्स का भी मसला है, सिर्फ हमें रीडर्स को ही नहीं कहना चाहिए कि वो अवेलेबल नहीं है, राइटर्स को भी सोचना चाहिए कि नए रास्ते कैसे निकालना है। जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह एक ही मक्खी पे मक्खी मारते रहे। अगर हम फॉर एग्जांपल डायलॉग की फॉर्म में लिखें, नसर अगर वैसे नहीं पढ़ी जा रही है, ड्राई है, तो हम उसको टेक्स्ट बुक अंदाज में ना लिखें। नॉवेल का, जैसे मैंने भी आपका नॉवेल ये पापी पढ़ा है, क्या खूबसूरत अंदाज है, ये एक नया अंदाज है। तो ये जो आपकी और डॉक्टर खालिद सोहेल का जो नॉवेल है, बड़ा खूबसूरत नॉवेल है, इट्स अ वेरी डायमेंशनल। तो उसकी वजह क्या है कि आपने नया तजुर्बा किया। जब तक हम नए तजुर्बात नहीं करेंगे और उसी तरह एक पुराना अंदाज रखेंगे, तब तक हमें खाली कम मिलेगा नहीं ऐसा मिलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आज काफ़ी नाजरीन हमें मिल रहे होंगे। और नाजरीन, डॉक्टर बुलंद इकबाल ने पहले तो प्रिंट मीडिया में काम किया, किताबें लिखी, लेकिन शायद वो कुछ और सोचकर फिर टीवी शोज की जानिब आ गए। तो आइए अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद इनके टीवी शोज के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। आपने देखा कि कुछ जगहों पर हम बड़े संजीदा भी हुए, लेकिन हमने वो लाइट मूड हमेशा बरकरार रखा है। हम दोनों के दांत आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये दांत अगर आपको मजीद देखने हैं तो जरूर वापस आइएगा, हम चलते हैं एक ब्रेक पे। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores.
At Dixie Electronics, our motto is, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन और हज़रात, जगह खाली है। आज ये जगह पुर की है बुलंद इकबाल ने, और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से पुर की है। उनकी मुदब्बिराना बातें और उसमें ज़राफ़त की चाशनी जो है वो आज प्रोग्राम का लुत्फ़ दुबाला कर रही है। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि मेरे सवालात के बड़े मज़ेदार और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब मिल रहे हैं, और उम्मीद है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आखिरी सेगमेंट में चलते हैं, बड़े मज़ेदार सवालात हैं, देखें कैसे जवाब मिलते हैं। जी जनाब, उमूमन टीवी शोज़ में जब दो मेज़बान होते हैं तो एक मर्द होता है और एक खातून, मगर आपके प्रोग्रामों में दोनों डॉक्टर और दोनों ही मर्द, एक आप और एक डॉक्टर खालिद सुहेल। क्या आप दोनों को कनाडा में कोई दानिश्वर खातून नहीं मिल पाई? नहीं, दानिश्वर ख़वातीन बहुत है। डर गए आप। मसला ये असल में डॉक्टर साहब की तो क्या ही बात है। मैं अलबत्ता ज़रूर ये है कि डॉक्टर साहब से कुछ सीख लेता हूँ कुछ इस प्रोग्राम के दौरान, मतलब। लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है कि दो मर्द मिलकर प्रोग्राम करते रहे और कर रहे हैं, और वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं। ये बात है ना? हो सकता है कि हमारे अंदर, जैसे आपके नॉवेल है पापी ये आज आपको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि मैं ये नॉवेल नाज़रीन पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस पर बाद में बात करूंगा। तो हर मर्द के अंदर एक औरत भी होती है, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं झलक जाती होगी। तो क्या मुझे लग रहा है कि वो लिफाफे की जो मैंने वहां बात की थी, लोग अब मुझ पे शक कर रहे होंगे। आज के दौर में देखा जाए तो आपके दोस्तों में दो ही आपके साथ ज्यादा नजर आते हैं, और दोनों डॉक्टर खालिद सुहेल और डॉक्टर मुबारक अली। हाँ। क्या मरीजों से सिर्फ क्लिनिक में मुलाकात करते हैं? हाँ, सच्ची बात तो यही है कि अस्पताल में मरीजों से मुलाकात होती है, मगर ये जो डॉक्टर हजरात हैं उनका मैं मरीज हूँ। अच्छा, कभी कोई मरीज मोहब्बत से भी मुलाकात हुई? मरीज से मोहब्बत से बस वो मुलाकात जो हुई थी वो आखिरी साबित हुई, जिससे उसके बाद फिर मैं उनका मरीज बन पूछता हूँ इस पर सवाल। अच्छा, आप लेजेंड शायर और दानिश्वर हिमायत अली शायर के सबसे छोटे साहिबजादे हैं, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल। उनकी अदब परवरी और स्कैंडललेस रिवायात को आपने बखूबी परवान चढ़ाया है और चढ़ा रहे हैं। आपके और उनके नजरियात में कितनी हम आहंगी थी और कुछ इख्तलाफी पहलू भी थे? नहीं, मैं अपने वालिद की फिक्र से खासा वो हूँ। मतलब सच्ची बात तो ये है कि उनका मैं बेटा ही नहीं हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी इल्म, जो कुछ भी बलूगत आई, उन्हीं की से आई, उन्हीं का ही मैं। और अगर मैं किसी भी हवाले से कुछ कर पाऊँ या उनका कुछ भी थोड़ा सा 0.01% भी रिफ्लेक्ट कर लूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है हो गई, मुकम्मल हो गई। हाँ, जहाँ तक इख्तलाफ की बात है वो ये कि डैडी में और मुझ में एक उन्वान से फ़र्क ज़रूर है कि चूँकि वो मुतअस्सिद घराने के, और मैं भी हूँ, मगर ये कि वो चूँकि पाकिस्तान में रहते थे और उनके साथ, और वो उनका जो मीडिया था वो शायरी बेसिकली थी, तो उन्होंने शायरी में अपने सारे सच को बयान कर दिया। और मैं ज़रा चूँकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे उसका एक प्रिविलेज मिल गया और दूसरा नस्ल मिल गई मुझे, तो मैं ज़रा ज़्यादा बोल्डली अपने ख्यालात के साथ कर लेता हूँ, जो शायद वहाँ मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो अदब के हवाले से हिमायत साहब आपको कौन कौन से खास मशवरे देते रहे? सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने मशवरे कभी नहीं दिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने, उनकी किताबें मैंने पढ़ी, तो और उनकी जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द था
وہ والے فادر نہیں تھے وہ جو مشورے دیتے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا, ایون انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی کہانی بھی اگر میری پڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیش لفظ میں یہ چیز کہا, ٹھیک ہے بیٹا جو آ رہا ہے نیچرل فلو میں چلے جاؤ, دیٹس فائن. تو آپ دونوں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے؟ بہت زیادہ. جی, ڈیڈی کے اندر بہت ہی حس تھی ہنسی مذاق کی, اور اچھے اچھے جملے چلتے رہتے. اچھا, میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ان سے ملا تو ہوں کئی بار, لیکن میں کبھی ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھ نہیں پایا. ان کا ایک کوئی طویل انٹرویو میں کرتا یا بات چیت ہوتی, میں پاکستان سے ان سے ملتا رہا ہوں, لیکن مواقع نہیں آئے ایسے کہ میں کبھی جو ہے ان کے ساتھ بیٹھوں. تو یہ اسی لیے مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑا. اچھا, اب دوسری طرف چلتے ہیں تھوڑا سا, لیکن فیملی کی بات. آپ اپنی شریک حیات سے اتنی محبت کرتے نظر آتے ہیں کہ لگتا ہے عورت کے معاملے میں بھی آپ کو شرک پسند نہیں. بھی لگایا میں نے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں مونوتھیزم کا قائل ہوں. ایمان میں جو مذہب کے حوالے سے تصور ہے اس میں نہیں, مگر یوں میں ضرور کہ میں وحدانیت کا قائل ہوں کہ بیوی سے محبت کرتا ہوں. ہاں میں کرتا ہوں. اچھا, اور اس میں بس ہے. اچھا, تو اسی سے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ مصمم پیش بندی ہے کہ کسی اور بندی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے کہ گھر کی بندی ناراض ہو جائے, یا بیگم کا روب زیادہ ہے؟ نہیں, اس میں بیگم کا روب بالکل نہیں ہے. میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. شاید بہت سے شوہرزاد سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ بالکل ہم دوستوں کی طرح اور مذاق زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ میں اس مزاج میں کا نہیں. اچھا, ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں بڑوں کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے چاروں بچوں کے نام مجھے بتائیے. جزیر میرے بڑے بیٹے, جزیر میں نے ان کو اپنا پہلا نام دیا. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ اقبال میرا آخری نام ضرور ہے, لیکن ڈیڈی چونکہ اقبال سے متاثر تھے تو انہوں نے مجھے اقبال دے دیا, اور انہوں نے باقی بھائیوں کے نام سے قافیہ جوڑ دیا, روشن خیال, اوجے کمال, ذوالجمال, بلند اقبال, لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں دیا. لیکن میں نے اپنا پہلا نام دیا اس لیے کہ اقبال کی فلسفی سے میرا کہیں ٹکراؤ ہو رہا تھا. حالانکہ ڈیڈی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ اقبال کے پولیٹیکل ویوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے نہیں. تو چاروں بچوں کے نام لیجیے. تو جزیر بلند, الینا بلند میری بیٹی, زویر بلند میرے بیٹے, اور پھر ایشل بلند میری بیٹی. اچھا, تو یہ آپ لوگ یہ نام سارے آپ نے خود رکھے ہیں یا حمایت صاحب نے رکھے ہیں؟ کیونکہ ان بچوں کے, آپ کے چاروں بچوں کے نام بھی اتنے ہی مشکل ہیں جتنے آپ کے بہن بھائیوں کے, تو یہ یونیک اور مشکل نام کیوں رکھے گئے؟ ڈیڈی نے نام جو رکھے تھے اپنے بچوں کے وہ اس لیے رکھے تھے کیونکہ وہ ایک خصوصاً مذہبی نام نہیں رکھا انہوں نے, آپ نے غور کیا ہوگا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مذہب سے نام کا کوئی ریفلیکشن ڈیولپ ہو, اور پھر ہماری سوسائٹی مذہبی اعتبار سے ڈیوائیڈڈ ہے اور مسائل ہیں بہت سارے, تو اس لیے انہوں نے اس کو اوائڈ کیا انٹینشنلی. میں نے جب نام رکھے تو میں نے بس کوشش کی. کہاں سے یہ نام, یہ بڑے تھوڑے سے مشکل نام ہے نا. ہاں, اور یہ کینیڈین سوسائٹی میں ان کے دوست احباب لے لیتے ہیں آسانی سے. ہاں, جزیر, الینا, تو الینا نام یہاں کامن ہے, ایشل کامن ہے, زویر کرسچن نام ہے. میں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ بھائی میرے نزدیک کرسچینٹی اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, نام بس ہونے چاہیے, میننگ اچھے ہیں. آپ کو اپنے چاروں بچوں کی کردار سازی پر زیادہ محنت کرنا پسند ہے یا من جملہ پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کی کردار سازی؟ میرا خیال ہے وہ بھی میرے بچے ہی. میں تو نہیں سمجھتا, وہ مجھے اپنا باپ سمجھتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا. وہ تو محمد علی جناح کو بھی نہیں سمجھتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے کیریکٹر سے سیکھ لیں, مجھے بولنا نہ پڑے جیسے میرے والد کو نہیں بولنا پڑا. اچھا, اور 22 کروڑ کے لیے 22 کو میں چاہتا ہوں کہ میں سناؤں اپنے لیکچر. میں مذاق کر رہا ہوں. نہیں, 22 کروڑ کا جہاں تک تعلق ہے ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے, مگر بس میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں. اچھا, اپنے پاکستانی ہونے پر آپ زیادہ فخر کرتے ہیں یا آپ اپنے کینیڈین ہونے پر؟ نہیں, میں پاکستانی, چونکہ زمین وہ ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں تو اس سے میرا بہت جینیٹکلی رشتہ ہے, وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, وہ جڑا ہوا ہے. بالکل. تو بچوں کا جو ہے وہ کی زمین جو ہے وہ کینیڈا ہے, تو وہ میرا مستقبل ہے, وہ میرا ماضی ہے. تو ماضی, اور میں نے کہا نا, آپ نے کہا تھا اینشینٹ دور سے کن کام ہوگا, تو میں ماضی کو چھوڑ نہیں سکتا, مستقبل میرا آگے ہے اور حال میں رہ رہا ہوں, تو میں کیسے ان تینوں کا الگ کروں؟ بالکل, لیکن کچھ چیزیں تو الگ کر دی ہے نا. نہیں, میں ابھی بھی جڑا ہوں پاکستان کی سیاست سے, ان کی سماج سے. میں کھل کے بولوں, مذہب سے. مذہب کا معاملہ پاکستان سے نہیں, کیونکہ پاکستان ایک غیر مذہبی ملک ہے. مذہب کا پاکستان غیر مذہبی ملک ہے. جی, پاکستان ایک غیر مذہبی ملک ہے. وہ مذہب کے نام پہ بنا ضرور ہے, مگر غیر مذہبی ملک ہے, کیونکہ وہاں پر مذہب نہ تو کبھی پریکٹس ہوا اور نہ ہی وہ مذہب ہے وہاں پر جس کو مذہب کہتے ہیں. تو آن دا ہول آئیڈیالوجیکلی وہ ملک اٹس ناٹ لائک ریلیجیس ملک, یا ریلیجیس ملک تو ریلیجیس ملک ہو بھی
भी नहीं सकता, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आइडियोलॉजिकली मेरे ज़रूर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसको मैं अपने तय समझता हूँ कि फिलोसफिकल अंदाज में सोचना चाहिए। तो मैं गैर मजहबी या एथियस्ट भी नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि मैं एक मिडिल मैन हूँ बिटवीन पाकिस्तान एंड कनाडा। ओके, गुड। वैसे एक बात है, जवाबात बड़े अच्छे आ रहे हैं और बड़े दिलचस्प भी हैं, और लेकिन लगता है आप हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, कहीं कहीं गोल कर रहे हैं आप। मैं असल में यासीन बेग साहब की इस वक्त सोहबत में हूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं गोलकीपर के करीब जाऊं तो देखूं कहां से मैं हिट कर सकूं। कभी कभी मैं गोल डाल देता हूं। अच्छा, बहसियत पाकिस्तानी, आपको मलाला यूसुफजई के नोबेल प्राइज मिलने पर ज्यादा खुशी होती है या मरहूम एधी साहब को नोबेल प्राइज ना मिलने पर दुख होता है? असल में नोबेल प्राइज मेरे लिए क्राइटेरिया ही नहीं है। मैं कम से कम ये नहीं समझता, ये मेरा बिल्कुल अपना ख्याल है, मैं नहीं समझता कि नोबेल प्राइज या दुनिया का कोई सा भी अवार्ड या प्राइज किसी भी इंसान की हिकमत का अंदाजा कर सकता है। वाह। तो ये बात तो यूं है। अब रही मलाला की बात है, तो वो मलाला जो है इज अ सिंबल ऑफ एजुकेशन, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस लिहाज से। और अब्दुल सत्तार इज अ सिंबल ऑफ द सोशल वर्क, कि उन्होंने इंसानियत की जो जिस तरह से खिदमत की, ये दोनों अपनी जगह जो लेकिन अगर ऐसे बड़े अवार्ड्स हैं और इतनी बड़ी शख्सियत को जो है ना मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीन पॉल सार्टर ने मना कर दिया था अवार्ड्स के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसमें भी कन्फाइंड हो सकें, कि वो अवार्ड के हवाले से थिंकिंग प्रोसेस वो तो अक्सर बड़े लोगों का यही। तो मैं समझता हूं कि अब्दुल सत्तार एधी जो है वो उस पर आपको कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है मुझे, बल्कि मैं समझता हूं मलाला की इस पे खुशी है। मुझे खुशी है कि अवार्ड मिला है, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान का नाम किसी भी लिहाज से, क्योंकि वो बहरहाल मेरा वतन है या रह चुका है, तो मैं चाहता हूं कि उसका नाम अच्छे लफ्जों में आए। अच्छा जी। अच्छा, आपको कभी अगर किताबों या प्रोग्रामों पर अवार्ड मिलता है तो यकीनन खुशी होती होगी? हाँ, मगर इख्तिलाफी नजरियात रखने वाले जब हेटेड कमेंट्स करते हैं तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूं कि वो भी आपकी कामयाबी है। अच्छा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप इग्नोर नहीं हुए। कौन सी चीज है जो, देखिए तारीफ और एप्रिसिएशन तो बहुत आसान सी चीज है, बात तो जब है जब आपकी बात पर रुक जाएं लोग और आपसे बहस करें, मैं समझता हूँ वहां से असल कामयाबी का सफर शुरू होता है, वहां से आप नजर आते हैं, वहां से आप समझ में आते हैं कि यार ये आदमी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया है, कि लोगों को खुदा हाफिज कहना आपको ज्यादा पसंद है या अस्सलाम वालेकुम? देखिए, दोनों के दोनों मजहबी वर्ड्स हैं। अच्छा, तो इससे कुछ खुदा हाफिज मजहबी कैसे, विश है ना ये तो? हाँ, विश है। हाँ। तो ठीक है, अगर लेकिन चूंकि मजहब में इस्तेमाल होते हैं मजहबी, तो उर्दू जबान के तो मेरे ख्याल में 80% अल्फाज ऐसे हैं जो मजहबी लगते हैं। हाँ, मगर मेरे लिए दोनों में कोई मसला नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भी ठीक है, खुदा हाफिज भी ठीक है। ठीक है। और मैं आप चाह रहे हैं कि नाज़रीन को खुदा हाफिज कहें तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, और अगर मैं अस्सलाम वालेकुम कहें तो और तो चले आप दोनों काम कर लें, फिर मैं अपना काम करता हूँ। या आप कीजिए। तो ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वरना हम मज़ीद बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुझे आज खुशी है कि बुलंद इकबाल जो है वो मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे प्रोग्राम का वक़ार बढ़ा इससे, और गुफ्तगू बहुत मज़ेदार रही, लोग भी इंजॉय करेंगे। तो वक्त हो गया है, सलाम का पहले वक्त था, अब खुदा हाफिज़ कहने का वक्त है। तो मैं आप सबको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, जिसका नाम है जगह खाली है। अब अपने मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।